I will take the relevant history. I will start from the headache. In the headache, I आपका will शुरू वाला ask. पार्ट कुछ मिस हो गया है। आपका शुरू वाला पार्ट हमने नहीं सुना है, वो कुछ मिस हो गया, दोबारा से प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। Okay, sir. अच्छा, टाइम कौन रिकॉर्ड कर रहा है आप में से? असद, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइम? For history, I will take the biodata of the patient, and after that, I will come to the chief complaints of the patient, and I will elaborate the chief complaint of the patient. In the headache, I will ask the patient. शाकिरुल्लाह, आपके उसमें कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वो इंटरप्शन काफी It है। was serious in our. कनेक्शन में इनकी प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम है? मुझे गाइड कीजिएगा अगर मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर बाकी सबको इनकी मुझे आवाज आ आवाज रही है। साफ आ रही है सर। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? नहीं नहीं, हमें भी नहीं आ रही, वी कांट हियर। नहीं, वो नहीं आ रही आपकी आवाज। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? हाँ, इट्स ओके नाउ। जी, Sir, after taking the biodata of the patient, I will start my with the chief complaint of the patient. मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज करिए। Sir, in the chief complaint, I will ask regarding the headache. The duration has given to that the patient has headache for 6 months. Then I will start that how the headache was started, and it was in onset or gradual in onset or suddenly started. And is the headache is progressive? Is it increasing or not? And or it is static? And then the which time the headache is more severe? The headache is more severe in the morning time or not? And then I will ask that the headache is intermittent or continuous headache. If the so it's important for me. Then I will ask that the headache is increased by sneezing or coughing or during process. So it is important for me. Then I will ask that the headache is and is it more severe in morning, and is it associated with the vomiting or not? And with the headache, the patient have like behavior changes or urinary problem or a memory problem. So I will ask regarding the headache. And then I will ask the patient from the history that the patient have any fever history, or the patient have any weakness in the body, or the patient have any speech problem, hearing problem, or any other face history, or any loss of consciousness. So these are important for me. And then I will ask that the patient regarding the vision, that the patient have blurring of vision. It is just blurring of the vision, or the patient have decreased vision. So if the patient have decreased vision, I will ask that in which side, is it unilateral or bilateral? And it is in the center, the side the vision is decreased. And then is it associated with the diplopia or any other pain of the eyes? So these are important. And then I will ask the patient regarding the memory problem. And I will ask that the patient have memory problem, and static, or it is increasing day by day. And then I will ask associated problem with the memory, or the patient have any other problem like urinary changes, urinary problem, or any other such problem.
then after that, I will ask the patient uh, any तो past बेटा आपके history पास of टाइम जो any है ना वो लिमिटेड disease. है, आप जो है यू आर टेकिंग टू मच टाइम, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो इसको आप क्विकली इसके ऊपर से जब आप गो थ्रू करेंगे तो ही आप फिर बाकी के पार्ट्स पूरे कर पाएंगे लॉन्ग केस। जी चलें आगे चलें। यस प्लीज प्रोसीड। जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं मेरे आ रही मेरी सर. बात साफ आ रही है सॉरी. आपको या नहीं आ रही, या मैं अपना नेट चेंज करूं? अभी साफ है. चलें तो आपके अभी टाइम साफ है शॉर्ट, सर. टाइम शॉर्ट है, तो आप जो है वो अगर ज्यादा टाइम एक पे लगाएंगे तो आपके पास बाकी के सेगमेंट्स हो जाएंगे कॉम्प्रोमाइज। एज एग्जामिनर इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू दैट। जी सर. चलें आगे प्रोसीड करें प्लीज। Yes, sir. Then I will ask, sir, regarding the low function of the patient, that the frontal lobe function. I will ask regarding the behavior of the patient, the urinary control of the patient, the vision of the patient, and the speech of the patient. And then I will ask the temporal lobe function, the memory. I have asked, and the patient have any other weakness in the body or not, and the patient have any any spots on the body, uh, or any other weakness in the body, and I will ask that the patient have any fecal or urinary incontinence history. And then I will ask the cerebellum function, that the patient have any tremors, any head nodding, any uh, nystagmus of the eye. So I will ask these, and then I will ask any spasticity in the body of the patient, or any other such problem in the patient body. Then I will ask regarding the past history of the patient, that the patient have any surgery for any lesion or any other such problem. So I will ask any past history of the patient, and medical and surgical history. So पूछने पूछना चाहेंगे पेशेंट से हिस्ट्री में रेलेवेंट पॉइंट्स? वुड यू लाइक टू आस्क एनी अदर थिंग इन द हिस्ट्री? yes sir, yes sir, sir, I mentioned that I will ask the other important question, like first and loss of consciousness, any hearing problem, any visual, the patient have the visual problem, any speech problem, and any uh, diplopia of the vision, and any pituitary problem, uh, pituitary problem, sir. पिट्यूटरी प्रॉब्लम कैसे uh, पूछेंगे? पिट्यूटरी प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे? हिस्ट्री में कैसे पूछेंगे पिट्यूटरी प्रॉब्लम? yes sir. Hormonal, hormonal, sir, I mean, like the patient have any hormonal problem, any this is the 13-year age. So I will ask that the patient have small for age, or the patient have obesity, or the patient have any diabetes insipidus. uh, ये तो सारी uh, चीजें आपको हिस्ट्री में कैसे पता चलेंगी? हिस्ट्री में आप तो अभी हिस्ट्री पे है ना, अभी जी सर. एग्जामिनेशन पे तो आए नहीं आप। सर मैं पेशेंट से पूछूंगा कि वो स्कूल में जो उसके पेरेंट्स है या पेशेंट है, वो स्कूल में किस तरह है, पढ़ाई में ठीक है, वो ये आपकी आवाज मोटा तो ज्यादा जी, नहीं है, वो तो मुझे वैसे भी नजर आएगा सर. ये तो एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा आपको कि मोटा है या नहीं। चले अब एग्जामिनेशन पे आ जाइए। व्हाट रेलेवेंट एग्जामिनेशन विल यू परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? Yes sir. Sir, I will start my examination from the general physical examination, and I will give a general look to the patient. Then I will check the vitals of the patient, and बेटा रेलेवेंट बातें बता दो, जो इस उससे सिनेरियो से रेलेवेंट वो बताओ। regarding इस सिनेरियो से pathology. रेलेवेंट क्या बात है? Okay. इस तरह से यू विल सेव योर टाइम आल्सो। रेलेवेंट बातें। Yes sir. सर इसमें मैं पेशेंट से उसकी जो न्यूरो आपकी आवाज में इंटरप्शन काफी है शाकिरुल्लाह।
रुक है ठीक है, और उसके जो मेरे ख्याल है आपका जो नेट कनेक्शन है शाकिरुल्लाह वो स्टेबल नहीं है, आपकी उसमें इंटरप्शन काफी है। वीकनेस देखूंगा। उसकी आई एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर मी, और आई एग्जामिनेशन में मैं देखूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैटरल रिफ्लेक्स, कंसेप्चुअल लैटरल डास्कोफी हो गया सर, एंड जो विजन है आई मोमेंट उसको मैं देखूंगा सर। और फिर फिर मैं क्रेनियल लो फंक्शन देखूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्रेनियल नर्व चेक करूंगा सर। और फिर इसके बाद में जो सेरेबेलम साइन है वो देखूंगा सर। तो आप विजन और क्रेनियल अलग-अलग करेंगे? आइस का और नहीं सर, श्योर उसके साथ क्रेनियल जो फर्स्ट जो जो आपके थर्ड है, फोर्थ है और सिक्स है और फिफ्थ और सेवन, इस उसके कुछ पार्ट में जो विजन एग्जामिनेशन करूंगा उसके साथ ही चेक करूंगा। चलें आगे चलें। और एग्जामिनेशन में क्या खास फिर बातें देखेंगे? आपने क्रेनियल बता दिए। यस सर, और फिर उसके जी सर, फिर उसके में जनरल जो एग्जामिनेशन है, जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है सर, क्रेनियल हो गया, सेरिबेलम हो गया, और फिर उसके अपर लिम लोअर लिम देखूंगा, उसकी पावर टोन रिफ्लेक्सेस ये सब कुछ देखूंगा, तो और सेरेबेलम के बाद लोअर देखेंगे लिम आप में स्पेशली जब मैं ज्यादा उसकी एग्जामिनेशन। प्लांटर देखूंगा सर। अच्छा चलें, अब इनको अगली वो दिखा दें स्लाइड असद, जिसमें आपके पास फाइंडिंग्स मौजूद हैं उसकी एग्जामिनेशन की, हिस्ट्री एग्जामिनेशन की। चलें, अब ये आपके पास फाइंडिंग्स आ गई हैं। डॉक्टर गौर, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं थोड़ा सा लेट क्या हुआ कि मैं आप लोगों को ज्वाइन करने में देर हुई, थोड़ा सा मुझे इमरजेंसी हो गई थी। नो अच्छा, इश्यूज। ये जितनी भी आपके पास जो है ना की है, चलें, अब शाकिरुल्लाह आपको ये नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब ये फाइंडिंग्स है आपके पास: रिकरेंट हेडेक, वॉमिटिंग, गेट डिस्टर्बेंस, मेमोरी डिस्टर्ब, वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉजिटिव यानी पेपिलिडीमा प्रेजेंट। अब आप किस तरह से सोचते हैं इस केस के बारे में? Sir, there is some midline lesion. मिडलाइन लीजन वेयर? Sir, there is a gait disturbance गेट and डिस्टर्बेंस, हेडेक, रिकरेंट हेडेक, वॉमिटिंग, मेमोरी डिस्टर्ब, वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पेपिलिडीमा पॉजिटिव। sir, it can be in the supratentorial or infratentorial. But सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल? most probable it is infratentorial. सॉरी, Most probable the lesion is infratentorial. इंफ्राटेंटोरियल कहाँ? आपने मिडलाइन की बात की थी, मिडलाइन लीजन है, इंफ्राटेंटोरियल है, कहाँ है? In the posterior fossa, sir. In the पोस्टियो फोसा, posterior पोस्टियो fossa. फोसा में आपने मिडलाइन की बात की थी है। इंफ्राटेंटोरियल और पोस्टियो फोसा एक ही चीज नहीं है? जी सर। इंफ्राटेंटोरियल और पोस्टियो फोसा एक ही बात नहीं है? जी सर। जी सर। चलें, आप कहीं लोकलाइज कर रहे हैं आप इसको लीजन? In the posterior fossa, sir. अच्छा बेटा, पोस्टियो फोसा में होगा तो और कोई खास बात होगी जो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही है? इस प्रेजेंटेशन की जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, पोस्टियो फोसा में और कोई खास बात होगी? Yes sir. सर उसमें ऐसी खास बात जो कि इसमें अपनी गैस डिस्टर्बेंस के साथ साथ पेशेंट को जो होगा वो क्लीनर इन्वॉल्वमेंट भी होगी। सॉरी,
क्रेनी नर्व जो होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होगी, अच्छा चलें। और इसके अलावा और जो ब्रेन स्टेम है, यानी पेशेंट स्पास्टिक होगा, ये भी हो सकता है, तो ब्रेन स्टेम भी इन्वॉल्व हो सकता है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है, उस पर कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को हाइड्रोसेफेलिस भी हो सकता है। अच्छा चलें, आप इसको जो है ना वो पोस्टिया फोसा में लोकलाइज कर रहे हैं, तो पोस्टिया फोसा में कहाँ पे? सेरिबेलर हेमिस्फीयर में रीजन? इन द मिड लाइन सर। मिड लाइन मिसाल के तौर पे कहाँ है? ब्रेन स्टेम में? मिड लाइन में ब्रेन स्टेम होता नो है ना, सर, फिर कहाँ पे? इन द फोर्थ वेंट्रिकल सर। फोर्थ वेंटिकल में, चलिए फोर्थ वेंटिकुलर लीजन में। तो आप आगे इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अब आपको मजीद जो है डॉक्टर शम्स वो करेंगे आप एग्जामिन वहाँ पे गौर इन्वेस्टिगेट। साहब इनसे ये जी सवाल तो पूछे कि ये अगर गेट डिस्टरबेंस को कैसे एलोबोरेट करते हैं। फॉर वो एग्जाम्पल इन्होंने एक बताया पेशेंट था। को कोई लेग में वीकनेस भी हो सकती है, उसको विजन में प्रॉब्लम भी हो सकता है, जनरलाइज वीकनेस भी हो सकती है, इस वजह से भी उनको जो है गेट डिस्टरबेंस हो सकती है। तो इन्होंने जी जी शायद इस चीज को पिक करके कि गेट डिस्टरबेंस है और इन्होंने पोस्टर फोसा जो है ना सस्पेक्ट किया है। जी जी, ये इन्होंने इससे पहले गेट डिस्टर्बेंस की एवेल्युएशन पे बात की है अपने उसके दौरान में, जब ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को वो कर रहे थे, रेलेवेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो इन्होंने गेट डिस्टर्बेंस से बात की है। तो इसलिए हम इनको उस पर वो नहीं कर रहे। तो खैर, अब अगर ये इन्होंने इसमें लोकलाइज कर ही लिया है, ये इनका कहना ये है कि ये लोकलाइज कर रहे हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ गए बीच में, शाकिरुल्लाह? सर ये अगर ये इस तरह भी हो सकता है, अगर कोलैट सिस्ट हो और या पिट्यूटरी हो, कोलाइड तो सिस्ट आप इसकी फोर्थ वजह। वेंटिकल में कहते हैं? नो सर, वो तो सुप्राटेंटूरे होगा सर। अभी तो आपने हमें इंफ्राटेंटोरियल लेके जा रहे अ, थे। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आ गए? सर मेरे ख्याल में इन्होंने दिया है, काइंडली ये फाइंडिंग दोबारा दिखा दें। फाइंडिंग, चले जी फाइंडिंग दोबारा दिखा दीजिएगा असद साहब। इससे पीछे भी सर चले जाएं थोड़ा सा, ताकि इनको सारी चीजें रिवाइज हो जाए पिछली वाली स्लाइड पे। सर ये विल डेवलप। चले, ये है जी, ये स्टार्ट है, 13 साल का लड़का है, और क्या कहते हैं, हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है और मेमोरी डिस्टर्बेंस है। ये इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जिसको कि आपने एलेबरेट किया। मैं आपको बाद में बताऊंगा केस के आखिर में कि आपने उसमें क्या वो किए हैं मिस्टेक्स, और ये बात की फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको दी जा रही सर इसमें हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल विजन, कैरेक्टर है मेमोरी, वो डेवलप्ड है, जिस विल डेवलप्ड है। तो ये वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 13 साल की उम्र में सही है? ये क्या होते क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? यस सर। किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये हेयर हो गया ऑन द बॉडी। हैं? हेयर हो गया, हेयर कहाँ यस पे? सर, इन द सर पे? नो सर, नो सर, बिलो द फिर अम्ब्लिकस सर। ठीक है, यानी प्यूबिक प्यूबिक हेयर, हम उसको प्यूबिक हेयर कहते हैं प्यूबिक ना। है जी और सर। इसके अलावा मेल में और इसके अलावा एक्सिलरी हेयर हो एक्सिलरी गया। प्यूबिक हेयर हो गया, चल रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और इसके अलावा मेल में बियर्ड, बियर्ड यस सर। बियर्ड 13 साल में आ जाती है, वेल डेवलप्ड है। सर आई कांट वेल से डेवलप्ड एनीथिंग 13 सर, साल में है जी। सॉरी। वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 13 साल के बच्चे में। अभी आप फिर भी इंफ्राटेंटोरियल पे लेके जाएंगे इसको या कहीं और लेके जाएंगे? आपके पास टाइम शॉर्ट है, ये ध्यान में रखिए, इसलिए आपको क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। लोकलाइज कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर शम्स आपको प्रोसीड कराएंगे आगे। लोकलाइज कर लीजिए पहले, अब तो आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स मिल गई है, लोकलाइज अब आपको कर लेना चाहिए। गौर साहब इसको प्रोसीड आप ही करें, शम्स साहब शॉर्ट मैं केस करूँ? करेंगे अच्छा शम्स क्योंकि साहब शॉर्ट के, तो मैं प्रोसीड करता हूँ, मैं प्लीज प्रोसीड करता कंटिन्यू। हूँ। चलिए शाकिरुल्लाह बताइए, लोकलाइज कीजिए पहले तो फटाफट, ताकि हम आगे बढ़े। टाइम शॉर्ट है आपके पास। सर फिर ये जो है
हाइपोथैलेमस हो गया, उसका लीजन हो सकता है। हाइपोथैलेमस का लीजन हो गया तो अच्छा, हाइपोथैलेमस का लीजन है तो उसमें सारी चीजें फिट हो रही हैं आपके ख्याल में? या फिर सर जो सेलर सुप्रासेलर लीजन है वो हो सकता है। सेलर सुप्रासेलर लीजन, आपका यस कहना सर। ये है कि ये जो हेडेक, विजुअल लॉस और मेमोरी डिस्टर्बेंस जो है सेलर सुप्रासेलर लीजन की वजह से, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको क्यों अर्ली डेवलप हो गए? ड्यू टू द हार्मोन, कौन सा ड्यू हार्मोन? टू हार्मोनल जो इलिश एफिस्टिच है सर, अच्छा, उसकी रिलीज। गोनेडोट्रोपिन की बात कर रहे हैं आप? यस सर, गोनेडोट्रोपिन। और इसके अलावा पॉसिबल क्या वो हो सकती है? तो आपने पहला तो कहा कि सेलर सुप्रासेलर लीजन, दूसरा डिफरेंशियल बता दीजिए मुझे क्विकली। एक तो सेलर सुप्रासेलर लीजन हो गया, चलें जी, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, यस सर। रीजंस बता दिए। दूसरा आप मुझे बताइए, दूसरी कोई पॉसिबल लोकेशन है? दूसरा सर इसके साथ जो है वो हाइपोथैलेमस में है सर। आपने और भी कोई इससे लोकेशन है? प्रेशर, इसके अलावा कोई लोकेशन बताएं, या हम आगे पेनिल बढ़े? ग्लैंड, पेनिल एरिया सर। पाइनियल में क्यों होंगे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स? पाइनियल में क्यों होंगे? ये जो सारे पाइनियल में हेडेक, सर तो आइडियली उसमें नहीं होना चाहिए इस तरह। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्विकली बताएं, टाइम शॉर्ट है आपके पास। पेनिल एनियल में ग्लैंड ये की जो सारी चीजें फंक्शन है क्यों नहीं होनी वो, चाहिए और क्यों होनी चाहिए? पेनिल ग्लैंड की जो फंक्शन है सर वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है सर। बेटा, ग्लैंड के फंक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी तो लीजन की बात हो रही है। ग्लैंड के जी फंक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। फिजियोलॉजी तो बात ही नहीं हो रही है, फिजियोलॉजी से ज्यादा तो अभी एक लीजन की बात हो रही है कि अगर पिनियल का लीजन है तो उसमें ये सारी चीजें फिट होती हैं या नहीं, जो अभी आपको शुरू से आखिर तक पता चली हैं, हिस्ट्री और नहीं सर, एग्जामिनेशन। इसमें पेनिल एरिया में इसमें फिट नहीं हो। तो आप पिनियल को सिर्फ निकाल ये है देंगे कि अपनी वो लिस्ट मिड से? लाइन है तो इस तरह हो सकता तो आप पिनियल को निकाल देंगे अपनी लिस्ट पे से या रखेंगे? है। रखूंगा आखिर में सर। आखिर में रखेंगे, तो चलें जी, पहले आपने क्या बताया था फिर? सेलर सुप्रा सेलर, यस सर। और दूसरा सिर्फ बताया आपने सप्रासेलर, पिनियल। और तो कुछ नहीं बताना चाहते इसके इसमें जो अलावा? पिट्यूटरी भी है और क्रेनियोफारिंजियोमा भी है। बेटा, वो सेलर सिलर सुप्रा सेलर सप्रासेलर। लीजन में आ गया ना, पिट्यूटरी फेरेंजियोमा, वो तो उस पे आ गया। फिर तो आप कह रहे हैं कि दो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, सेलर सुप्रा सेलर और पिनियल, यस सर। ऐसे ही है? चलें फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करें? हाइपोथैलेमस है। यस चलें सर। हाइपोथैलेमस भी रखते हैं। इसके लिए मैं पेशेंट को एक तो जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो करूंगा। दूसरा जो रेलेवेंट हार्मोनल है इन्वेस्टिगेशन बता दें, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन बता दें जो इस केस से रेलेवेंट। आपने खुद ही इसमें डायग्नोज किया है, खुद ही एमआरआई ब्रेन। analyze किया। यस सर, एमआरआई ब्रेन विद एमआरआई ब्रेन कंट्रास्ट कौन सा करूंगा। वाला? कंट्रास्ट के साथ? और प्लेन कोई विद खास बात ये उसमें प्लेन एमआरआई विद में? कंट्रास्ट। अच्छा, चलें और और विद पिट्यूटरी प्रोटोकॉल। उसमें क्या क्या होता है पिट्यूटरी प्रोटोकॉल? उसमें जो कट्स होते हैं सर दे आर वेरी थिन। थिन कट्स होते वन, हैं, और कुछ होता है इसके अलावा? जी सर। पिट्यूटरी प्रोटोकॉल अगर मैं किसी से कहता हूँ पिट्यूटरी प्रोटोकॉल एमआरआई, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वन इज द कट इज वेरी थिन। चलें, थिन कट हो अगर गया एक, दूसरा दो? दूसरा सर जो ड्यूरेशन है जो कंट्रास्ट देती है। उसमें क्या होता है, क्या खास बात होती है कंट्रास्ट ड्यूरेशन में? एक तो जल्दी लेते हैं विद इन 5 मिनट, और दूसरी कट लेते हैं आपकी आवाज साफ आफ्टर। नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा। एक जल्दी लेते हैं सर आपकी आवाज साफ नहीं आ विद रही, इन। दोबारा बोलिएगा। एक जल्दी लेते हैं, मेरी आवाज आ रही है चलें, सर। और फिर दूसरा? आपकी आवाज आ एक रही है जी, एक जल्दी लेते हैं, मैंने समझ गया आपकी। और दूसरा? दूसरा आफ्टर 30 मिनट्स लेते हैं सर, और कोरोनर कट्स लेते हैं वो इसमें। उसकी क्या, उस पे वो क्या है, इसकी रीजन क्या है? सर इनिशियली जो पिट्यूटरी इसकी ग्लैंड रीजन है, क्या है, एक जल्दी रीजन क्या है? जी जी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनहांस करता है, और बाद में जो ट्यूमर है वो इनहांसमेंट होती है। अच्छा, चलें,
इसके अलावा फिर और बता दीजिए, आपने कोरोनल कट्स बता दिए, ठीक है जी, पिट्यूटरी प्रोटोकॉल हो गया, आपने पिट्यूटरी ठीक है ना। यस सर, तो तो अब उसकी आप भी कट पिट्यूटरी लेंगे सर, प्रोटोकॉल जो है, लेकिन ज्यादातर तो हमारे ब्रेन में वो भी नजर आएगा सर। तो एमआर का जो टेक्नीशियन है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, मेरा मतलब है कि हम हमारे ब्रेन विद एंड विदाउट कंट्रास्ट करेंगे और विद पिट्यूटरी प्रोटोकॉल। विद पिट्यूटरी प्रोटोकॉल, चलें आगे चलें। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप इस पेशेंट को। टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखें क्योंकि जी सर, आगे चलें। और हार्मोनल प्रोपेल करेंगे पेशेंट की नाम बता दें, उसकी। करके सारे हार्मोन्स के नाम बता दें जो जो करेंगे। यस सर, LH, FSH, कार्टिसोल, सीरम कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, और पेशेंट की जो रैंडम ब्लड शुगर है वो भी चेक करेंगे सर। अच्छा चलें, ये इन्वेस्टिगेशंस कर ली, अब आप आगे चलें, और क्या करेंगे? और ऑप्थेल्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा चलें, अब इनको इन्वेस्टिगेशन दिखाइए। चलें ये डिस्क्राइब करें आप, ये आपके सामने कुछ इमेजेस हैं, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। पहले तो जो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे इमेज दिखाई दे रही है वहां से डिस्क्राइब कीजिए, और अपर राइट कॉर्नर पे आइए, फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और फिर लोअर राइट कॉर्नर की तरफ आते जाइए। जी बताइए। हेलो सर। जी आप बताइए। अपर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर की तरफ प्रोसीड कीजिए, फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर और लोअर राइट कॉर्नर की तरफ प्रोसीड कीजिए। आपके सामने 6 इमेजेस आ रही होंगी, बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। Yes, sir. Sir, this is the on the left side. This is the T1 weighted sagittal MRI of the patient, ठीक है, uh, and there is the ISO to ISO intense lesion. कहाँ पे? जी शाकिरुल्लाह, कहाँ पे ऐसे इंटेंसिव? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। Yes, sir. आप लोगों को शाकिरुल्लाह की आवाज आ रही है? मुझे ही, मेरे पास इंस्ट्रक्शन हो रही है। नो सर, आवाज नहीं आ रही शाकिरुल्लाह की। आवाज नहीं आ असल रही, शाकिरुल्लाह की आवाज नहीं आ को रही। जो बड़ा कर दें, जी सर। इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दें। सर शाकिरुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सर इमेज बड़ा नहीं हो रहा, ये पीछे जाना पड़ेगा उसमें, सॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। चलें, अभी तो मेरे ख्याल इसको शाकिरुल्लाह को हम उस पे तो लेके आते हैं अपने यानी सेशन में। तो शाकिरुल्लाह, आप हमें सुन सकते हैं या नहीं? वी कांट हियर यू। एनीबॉडी एल्स को सर, किसी और को ले सकते हैं, किसी और को ले, इधर से कंटिन्यू चलें कर यहाँ ले, से किसी और को। पार्टिसिपेंट्स जो हैं। बिल्कुल ठीक है, ले लें किसी और। जी सर। अयाज भाई आप हैं, डॉक्टर साद, अयाज, जी डॉक्टर अतर, जी सर, कोई जी एक सर, वॉलंटियरली। ये सर मैं 2 मिनट में थोड़ा सर रिलेवेंट बताता हूँ सर, ये हिस्ट्री में सर, जिसमें हम सर पूछेंगे सर। मैं थोड़ा सा वो करता हूँ सर। अब गैस पाल्सी, निस्टैगमस, पुलिपेजिया, पुलिडेप्सिया सर,
एंड कंट्रालेटरल हाइपरेस्थीसिया, पेरेस्थीसिया सर, जिसमें थैलेमिक इन्वॉल्वमेंट हो सर, स्टिफनेस एंड गेट नहीं, अब वो डिस्टरबेंस। तो पीछे रह गया, अब वो तो पीछे रह गया। अब तो आप ये इमेजेस डिस्क्राइब कीजिए। अब उसकी बात तो फिलहाल आप छोड़िए, इमेजेस पे आ जाइए, इसलिए कि आपके पास टाइम शॉर्ट है। अब आपको इमेजेस बतानी है ताकि मैनेजमेंट पे आ सके। Okay, sir, this is a MRI brain T1 weighted image is showing a hypointense lesion in the pineal region, sir, and the other one is the हाइपो T2. इंटेंस लीजन, आप Yes, कह sir, रहे हैं हाइपो इंटेंस लीजन इन द पाइनियल रीजन। आप अपर लेफ्ट इमेज बता रहे हैं ना, अपर लेफ्ट कॉर्नर की इमेज, इजंट इट? yes sir, लेकिन ये सर अगर हम कंट्रास्ट पे आ जाए तो फिर मिक्स्ड इंटेंसिटी लीजन है सर, सॉलिड एंड जो सिस्टिक कंपोनेंट है वो दोनों शो कर रहे कंट्रास्ट हैं कौन सर। सा वाला है? आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी इमेज डिस्क्राइब कर यस रहे हैं। सर, कंट्रास्ट है अगर हम ये राइट कॉर्नर पे आ जाए आइडेंटिफाई सर, कीजिए, अपर लेफ्ट नीचे कॉर्नर है या मिडिल वाली अपर मिडिल इमेज है या अपर राइट लोअर सर, कॉर्नर? लोअर आप लोअर से जाएं। लोअर राइट पे जो है सर सिजिटल एंड ये जो कोरोनल कट से ये दोनों सर। और अच्छा ये जी, सर लोअर मिडिल और यस राइट, चलें ठीक है। यस सर, और ये सर it also shows the global compression of the third ventricle and its global effects in the form of temporal horn dilatation as well as dilatation of the आप third ग्लोबल ventricle इफेक्ट सर। कह रहे हैं, ग्लोबल से क्या मुराद है आपकी? सर लोकल इफेक्ट हमें होता है कि जो लोकली हम मिड लाइन शिफ्ट करते हैं, लोकली जिस चीज को कंप्रेस करता है, अगर मैं कहूँ कि क्वाड्रिजिमिनल प्लेट को कंप्रेस करता है और ये, तो ये लोकल इफेक्ट हो गया सर। और अगर ग्लोबल इफेक्ट के बारे में मैं कहूँ तो वो हाइड्रोसेफलस होता है सर। ग्लोबल इफेक्ट हाइड्रोसेफलस होता है। अच्छा, चलें अभी हम इसमें इस बहस में नहीं पढ़ते। आप ये बताइए कि इसमें जो लीजन है वो उसकी एनहेंसिंग लीजन है या नहीं है? आप एनहेंसिंग हम है सर, एनहेंसिंग लीजन, एनहेंसिंग जी सर। और आप कह रहे हैं पिनियल रीजन में, और उसने किस चीज को कंप्रेस किया हुआ है जिसकी वजह से ये हाइड्रोसेफलस हो रहा है? सर ये थर्ड वेंट्रिकल को कंप्रेस कर रहा है सर। थर्ड वेंट्रिकल को कंप्रेस कर रहा है, और इसके अलावा भी किसी चीज को कंप्रेस कर सकता है हाइड्रोसेफलस करने के लिए? थर्ड वेंट्रिकल, क्वाड्रिजिमिनल प्लेट सर। कॉर्डियमिनल प्लेट, कॉर्डियमिनल प्लेट पे प्रेशर से क्या चीज कंप्रेस होगी? क्वाड्रिजिमिनल प्लेट में सर कंप्रेशन से सर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस और नहीं, कॉर्डियमिनल प्लेट से क्या चीज कंप्रेस होगी जिससे हाइड्रोसेफलस होगा? क्वाड्रिजिमिनल प्लेट से तो सर मिड ब्रेन कंप्रेस होता है। मिड ब्रेन के अंदर क्या लेकिन होता है? मिड ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम का? सर मिड ब्रेन के अंदर तो नहीं होता नहीं होता मिड ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टम का कोई पार्ट नहीं होता। ये अक्सर सर एक्विडक्ट अब्सिल्वियस अगर इस तरफ आ रहा हो। चलें आगे चलें। ये तो आपने इमेज देख ली, अब आपके सामने क्लिनिकल वो है, पार्ट है, इमेजेस हैं। अब ये बताइए कि और फर्दर इसमें कुछ करवाएंगे, मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे आप क्या? यस सर, सर इसके लिए मैं ये जो ट्यूमर मार्कर्स है सर मिसाल वही के तौर पर कराऊंगा कौन सर। कौन और इसके नाम बताइए। यस सर, इसमें है बीटा ह्यूमन कोरियानिक गोनेटोट्रोपिन, अल्फा P2 प्रोटीन सर, और प्रोटीन है बीटा ह्यूमन कोरियानिक गोनेटोट्रोपिन है सर। और इसके अलावा और इसके कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है सर। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, यस अच्छा, सर। चलें और कोई बताएं इसके अलावा। इसके अलावा सर मैं MRI स्पाइन जरूर करवाऊंगा क्योंकि इससे मिट्स होते हैं सर स्पाइन पे। एमआरआई स्पाइन, ठीक है जी, गुड। एमआरआई स्पाइन आप करवाएंगे। वो कौन से मेट्स कहलाते हैं जो एमआरआई स्पाइन में आप ढूंढेंगे? सर ये ड्रॉप मिट्स होते हैं सर। ड्रॉप मेट्स होते हैं, ठीक है, चलें जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए इनको सब। अच्छा, आपको काउंसिल, हाँ सही देता अब आपको इसे काउंसिल करना है, तो काउंसलिंग आप कैसे करेंगे इस पेशेंट की? ओके सर, मैं इस तरह कोशिश करूंगा कि मैं ग्रीटिंग से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं उनको बताऊंगा कि आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता है कि नहीं है, तो फिर वो मुझे कुछ ना कुछ बताएगा। फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपकी जो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो ये जो रेडियोलॉजिकल है या जो आपके ब्लड या CSF से जो ट्यूमर मार्कर है वही सारी चीज़ें, कि इससे हमें पता चले कि आपके दिमाग की जो निचला हिस्सा है इसमें एक रसूली है,
तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि ट्रीटमेंट जो ऑप्शन होते हैं मैं उनको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम आपका सर्जरी कराएंगे और सर्जरी के बाद हम इसी गोश्त का टुकड़ा भी लेंगे, हम इसकी बायोप्सी और बायोप्सी आने के बाद अगर आपको इसके बाद जो है सर रेडिएशन देंगे और ये जो क्रेनियोस्पाइनल एक्सिस है दोनों को हम रेडिएशन जो है सर वो देंगे और इसके बाद सर हम इनसे इन्फॉर्म कंसेंट और ये चीजें लेंगे सर। अच्छा चलें, अब आप जो है इसकी सर्जरी कैसे करेंगे? ओके सर, तो इसके लिए मेनी ऑप्शंस है सर। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट आई विल पुट द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन सर, हेड इन हर शू हेड रेस्ट सर, क्लीनिंग ड्रेपिंग सर, और इसके बाद they are asking about options of the treatment सर। तो ऑप्शन में हमारे पास जो है सर ये है कि एक सर्जिकल ऑप्शन है और एक रेडिएशन है सर और कीमोथेरेपी है सर। तो इस तरह सर कि अगर ये चलिए परस करिए अगर जर्मिनोमा हम कर रहे तो जर्मिनोमा में हम सब रेडिएशन और कीमोथेरेपी दे सकते हैं सर, और बाकी जो है इसके लिए हम सर्जिकल जा सकते हैं। तो सर्जिकल में हम ज़्यादातर हम इंफ्राटेंटोरियल सुप्रासेरेब्रल कर सकते हैं और ट्रांसटेंटोरियल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन भी है जिसमें है सर ट्रांसकार्टिकल इंट्रावेंट्रिकुलर ट्रांसकेलोजर सर और लेटरल पिरामिडियन इंफ्राटेंटोरियल सर एंड पिरामिडियन इंफ्राटेंटोरियल सुप्रासेरेब्रल। ये हमारे पास जो है ये सारे ऑप्शन है सर। फॉर एग्जांपल आपने सपोज किया थोड़ी देर के लिए कि जर्मिनोमा है, तो जर्मिनोमा डायग्नोस कैसे करेंगे? जी सर, जर्मिनोमा में डायग्नोस के लिए ये है सर कि एक तो हमें जो है सर कंट्रास्ट एनहांसमेंट इसमें ज़्यादा होती है सर, और दूसरा ये है कि सर ट्यूमर मार्कर से हमें पता चलता है कि जर्मिनोमा है कि नहीं, क्योंकि उसमें सर प्लेसेंटल अल्कलाइन फास्फेटेस की मिकदार जो है सर वो जर्मिनोमा में ज़्यादा होती है सर। लेकिन हमारे पास इसके लिए बायोप्सी भी अगर हम ले लें तो बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। बायोप्सी में हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम सर ओपन बायोप्सी ले सकते हैं अगर वेंट्रिकल डायलेटेड हो। वेंट्रिकल और अगर ट्यूमर अगर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आपके सामने केस मौजूद है। ये सर, तो इसी में डायरेक्टली सर्जरी करूंगा सर और इसका बायोप्सी लूंगा सर, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या है सर। तो बायोप्सी कैसे लेंगे तो वो मुझे बता दो। बायोप्सी सर सारा ट्यूमर जब मैं रिमूव करूंगा तो इसके मैं लेबोरेटरी भेजूंगा, इसकी बायोप्सी करवाऊंगा सर। तो आपने सारा ट्यूमर रिमूव कर दिया, बाद में पता चला जर्मिनोमा था वो, और पेशेंट जो है वो उसको अपवर्ड गेज पॉलिसी भी हो गई है और क्या कहते हैं उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी डाउन है, तो इज इट जस्टिफाइड? सर इस तरह है कि हाइड्रो को तो भी मैंने करना है ट्रीट। हाइड्रो तो मैं पहले भी ट्रीट कर सकता हूँ और बाद में अगर पेशेंट मेरे पास डाउन है तो मैं ईवीडी कर सकता हूँ। इसमें मैं शंट नहीं कर सकता क्योंकि इससे पेरिटोनियल मिट्स होती है और शंट डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है सर। तो इसके लिए मैं ईवीडी कर सकता हूँ और जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो इसके बाद मैं सर्जरी कराऊंगा। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर सर्जरी जो ज्यादातर पेशेंट है वो तो ऐसी ठीक नहीं होती, उनको हाइड्रो डेवलप हो जाता है, तो इसके लिए मैं सर अगर ट्यूमर रिमूवल से इसकी हाइड्रो अगर ठीक नहीं हो रहा हो तो बाद में मैं मिशन कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपसे कुछ और सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। आपने कहा आप सर्जरी कर देंगे, उसके बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवा देंगे, बाद में पता चला जर्मिनोमा है, हिस्टोपैथोलॉजी बाद में ही आई, आपने सर्जरी की, उसके बाद उसको सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, तो इज दिस ओके? इज दिस अप्रोच ओके या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? रेडिएशन एडजंक्टिव ट्रीटमेंट देंगे सर। तो फिर उसमें सर्जरी करने की क्या जरूरत है अगर आपको रेडिएशन ही देंगे? जर्मिनोमा निकला बाद में ना, आपने खुद बताया जर्मिनोमा निकला। अगर जर्मिनोमा के लिए आप कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे सर? इस तरह नहीं सर, अगर पहले से हमारे पास ट्यूमर मार्कर आ जाए तो इस तरह भी हो सकता है कि ये मिक्स ट्यूमर है और या ये मतलब इस तरह की भी हो सकते हैं कि लेकिन ये पुराने वक्त में ऐसा होता था। अब हम इस तरह करते कि हम सर्जरी डायरेक्ट कराते हैं सर। डायरेक्ट सर्जरी से मुराद ये कि आप डायरेक्ट एक्सट्रूशन करेंगे या बायोप्सी करेंगे? मैं सर्जरी सर। तो दोनों सर्जरी ही तो है, एक्सट्रूशन भी सर्जरी है, बायोप्सी भी सर्जरी है।
आपने खुद जी ही सर। जर्मिनोमा का नाम लिया ना शुरू में, तो मैं अब जर्मिनोमा पहले थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। जर्मिनोमा सर डायग्नोज मुझे कैसे करेंगे? फर्ज करें कि अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल है, बीटा एचसीजी नॉर्मल है, यस यस सर। तो आप जो है उसको कहेंगे कि जी ये दोनों नॉर्मल है तो ये जर्मिनोमा नहीं है, तो हम सर्जरी करेंगे, ऐसा है या कुछ और? रेडिएशन दे सकता हूँ सर अगर जर्मिनोमा है। बगैर टिश्यू डायग्नोसिस के रेडिएशन देंगे? नहीं, टिश्यू डायग्नोसिस के लिए तो बाद में एडजंक्टिव में दे सकता हूँ, अगर मैं सर्जरी करा लूँ सर तो ये तो एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, मैं क्रेनोस्पाइनल एक्सिस को जरूर रेडिएशन दूंगा सर। बेटा टिश्यू कहाँ से आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। कौन सा बहुत टिश्यू सर? मैं टाइम अच्छा चले समझ आगे नहीं चलेंगे। रहा। आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जर्मिनोमा एक्सक्लूड करना है। जर्मिनोमा एक्सक्लूड कैसे करेंगे? जर्मिनोमा को आपको सर क्या है ना, वो मैं जर्मिनोमा जो अच्छा है जी वो रेडिएशन जर्मिनोमा को रिस्पॉन्स, एक तो मैं ट्यूमर मार्कर से एक्सक्लूड करूंगा सर, ट्यूमर और मार्कर्स एक मैं नॉर्मल है, इसके ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है। अच्छा ट्यूमर तो मार्कर्स किसमें करते हैं? हम वो जो ट्यूमर मार्कर्स हैं जर्मिनोमा के, वो किस में करते हैं, कौन से मीडियम में करते हैं, कौन से फ्लूइड में करते हैं? ये सीरम में सर और सीएसएफ में। तो आपने लेबोरेटरी से पूछा कि जी सीएसएफ मार्कर्स होते हैं, उसने कहा जी नहीं होते सीएसएफ मार्कर्स, हमारे पास अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी। और तो सीरम सीरम सी मार्कर जो है, सीरम मार्कर्स नॉर्मल है। जी सर। अब क्या करेंगे, जर्मिनोमा कैसे एक्सक्लूड करेंगे? सर एनहांसमेंट है वही होगा सर। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब आप सर्जरी बता रहे हैं, सर्जरी के अप्रोचेस बता रहे हैं, आप इस रीजन को किस ओपन अप्रोच से ऑपरेट करें? सर मोस्ट प्रोबेबली इंफ्राटेंटोरियल मिडलाइन इंफ्राटेंटोरियल सुप्रासेरेब्रल सर। चलें उसके स्टेप्स बताएं। Sir, patient after general anesthesia and tracheal intubation, patient in prone position, cleaning and wrapping, sir. Then midline skin incision from the anion to C1 or C2 spinous process, sir. After that, इसमें sir, कंसेंट का कोई रोल है? इसमें कंसेंट जी का सर, कोई रोल है? कंसेंट का हाँ कोई रोल है? कंसेंट तो लूंगा सर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है सर वो लूंगा। तो आपने कंसेंट का तस्करा नहीं किया। सर वो चलें जो आगे चलें, अगर आगे चलें। अगर मैनेजमेंट का मैं बताऊं तो एडमिशन और इन्वेस्टिगेशन और कंसेंट और एनेस्थीसिया कंसल्टेशन ये आगे सब चलें, चीज में उसकी है, ये चलें सर्जिकल अच्छा आगे स्टेप्स चलें। में बता। पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में आ गया, अब आप क्या करें? Sir, patient general anesthesia with endotracheal intubation, prone position, cleaning and wrapping, sir. After that, skin incision from anion to down to C1 or C2 spinous process, sir. After that, subcutaneous dissection, and after that, suboccipital craniectomy, sir. इसके बाद सर सबऑक्सीपिटल क्रेनिएक्टोमी के बाद सर I will open the dura, sir, and will start my dissection, but I will take veins which I should take care that are the basal vena Rosenthal, internal cerebral vein, great cerebral vein of Galen, sir, and the anterior choroidal artery, sir. I will take care for that, अच्छा ये and सारी I will वेन्स कहाँ होंगी, इस लीजन से क्या रिलेशनशिप होगी इन वेन्स की? सर ये इसके सराउंडिंग में होंगे सर। सराउंडिंग तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी, आगे भी, पीछे भी। सराउंडिंग से क्या मुराद है, कहाँ होंगी ये वेन्स? इस लीजन से क्या रिलेशनशिप होगी मोस्ट प्रॉब्ली? सर इस लीजन से ऑन द राइट साइड बेसल वेना प्रोजेंटाल होगा सर। अच्छा और ऊपर? ऊपर सर फिर हमारे पास इंटरनल सेरिब्रल वेन, अगर ये कंबाइन हो जाए बेसल वेना प्रोजेंटाल से तो साइड पे ये बनाएगा सर ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गेलन which will combine with the inferior petrosal sinus and will form the straight sinus, sir. इंफीरियर पेट्रोजल साइनस का है? Sorry, inferior petrosal नहीं सर, inferior sagittal sinus, sir. चलें इंफीरियर साइडल साइनस। अब इसमें ये बताएं कि आपने ऑपरेट कर दिया, जी सर। पेशेंट जो है उसको अपवर्ड गेज पॉलिसी डेवलप हो गई है और उसकी जो प्यूपिल्स हैं वो रिएक्ट नहीं कर रही हैं, नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स बायलैटरली। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी डाउन है, तो आप किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको? सर इसको मैं इस तरह इन्वेस्टिगेट करूंगा कि सर सीटी कराऊंगा कि उसी जगह पे पोस्ट ऑफ हेमाटोमा
है कि नहीं, और वेन किस अगर इंजर हुए हो तो उसी का, और इसके अलावा सर हो सकता है इसको अब गैस पल्स और ये चीजें हो रही हो तो ये नियर लाइट डिसोसिएशन जो है सर हुई हो, या मिड ब्रेन इंजरी हुई हो सर। अच्छा, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बता दें इस सर्जरी। इस सर्जरी कॉम्प्लिकेशन सर, एक तो पोस्ट ऑफ हेमाटोमा है, एक सर इसकी ये जो इसकी वेन्स है सर, इसकी इंजरी है सर, मिड ब्रेन इंजरी है, सेरेब्रल इंजरी है सर। कौन सी वेन मोस्ट कॉमनली इंजर होती है इस उसमें? जी सर, कौन सी वेन मोस्ट कॉमनली इंजर होती है इस अप्रोच में? इस अप्रोच में सर इंटरनल सेरेब्रल वेन ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन इसमें हम सर ये प्री सेंट्रल वेन जो है इसको कागुलेट कर सकते वेन कौन हैं सी है? प्री सेंट्रल वेन कौन सी है? सर। प्री सेंट्रल वेन goes to the superior median अच्छा चलें, और कोई वर्मियन कॉम्प्लिकेशन? और कोई कॉम्प्लिकेशन? वर्मियन। जी सर, वर्मियन वेन। अच्छा चलें, और कोई कॉम्प्लिकेशन? और कॉम्प्लिकेशन सर इसमें ब्रेन स्टेम इंजरी हो सकती है, लोअर क्रेनियल की इंजरी हो सकती है सर, कोराइडल आर्टरी की इंजरी हो सकती है इसमें। कोरोइडल आर्टरी? यस सर। अच्छा, सेरिबेलम को क्या होगा? सेरेबेलम इंजर हो सकता है इसमें, म्यूटिज्म, सेरेबेलर म्यूटिज्म बाद में हो सकते हैं सर, अगर इसकी इंजरी हो जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारा वो खत्म हो गया है। जी अच्छा, सर। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। जी सर, अच्छा, हमारा तो एक केस खत्म हो गया है। नेक्स्ट रेडियोलॉजी का होगा जिसमें इसी तरह होगा, तो आगे मैं प्रोसीड करें। अपने पॉइंट्स बता देता हूँ फीडबैक के, या आप पहले वो करना चाहते हैं लॉन्ग के शॉर्ट के सब करना चाहते हैं? आप फीडबैक दे दें। फीडबैक, मेरा फीडबैक ये है कि आपने जब उसमें हिस्ट्री टेकिंग में हमारे साथ शाकिरुल्लाह ने जो स्टार्ट किया था, तो उन्होंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमेशा आप जब एग्जाम में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री टेकिंग, तो आप हमेशा इससे स्टार्ट करेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी आप कहेंगे कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग। फिर उसके बाद जब आप वाइटल डेटा ले चुके हैं और आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस को एलेबरेट कर रहे होते हैं, तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक ऑन रेलेवेंट पॉइंट्स। अच्छा, आप वहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस केस को फोकस करके आप रेलेवेंट पॉइंट्स उसको डिस्क्राइब करते कि मैं ये रेलेवेंट पॉइंट्स होगा। जब भी आपके पास ये ले आएगी, मेमोरी के भी वो फीचर्स इसमें आ रहे हैं, तो मेमोरी का एग्जामिनेशन पहले आएगा। तो आप जो है काफी यानी हैफेजर्ड वे में चल रहे थे, कभी आप क्रेनियल नर्व्स की तरफ आते थे, तो कभी आप जो है मोटर सिस्टम की तरफ आते थे, तो उसको एक ऑर्डर में आप डिस्क्राइब कीजिए। तीसरी चीज ये है कि जो इसमें अनयूजुअल बात है, जो कि इंफ्राटेंटोरियल आपको नहीं लेके जा सकती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको इंफ्राटेंटोरियल नहीं ले जा सकता। आप इंफ्राटेंटोरियल नहीं जा सकते, मैं शाकिरुल्लाह को होगा। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि जो रेडियोलॉजी जो डिस्क्राइब की है, तो रेडियोलॉजी में इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वो स्पाइनल मेट्स के लिए फिर स्पाइन की भी वो करेंगे, इमेजिंग करेंगे। जहां तक ताल्लुक है उसका जर्मिनोमा का, तो जर्मिनोमा की हमेशा बायोप्सी के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो एंडोस्कोपिक बायोप्सी प्लस एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, ये जो है यूजुअल प्रैक्टिस है। अगर फर्ज करें आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्राइब कर दें कि हम जो है एंडोस्कोपिक बायोप्सी और एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, उसमें बायोप्सी में अगर जर्मिनोमा आता है तो उसके लिए सर्जरी नहीं करते। फिर जर्मिनोमा के लिए अब सर्जरी जर्मिनोमा के लिए नहीं करते अनलेस के वो रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो टू रेडिएशन। तो चुनाचे ओपन सर्जरी अब जर्मिनोमास के लिए नहीं होती। ओनली वंस यू एक्सक्लूड के जर्मिनोमा है टिश्यू डायग्नोसिस पे, ओनली देन यू प्रोसीड फॉर ओपन सर्जरी। और ओपन सर्जरी में आपने जो कॉम्प्लिकेशन बताई है, उसको कॉम्प्लिकेशंस को उससे स्टार्ट कर लें, पोजिशनिंग से लेके और फिर ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है उसको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और मैं खुद यही कहूंगा कि ये जो डॉक्टर साहब थे, ये बार जो है सुप्रा सेरिबेलर इंफ्राटेंटोरियल की चीज बता रहे थे। बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, और जो भी है वो आप नहीं बता रहे थे। आप स्टीरियोटैक्सी भी बता रहे थे, आप ट्रांसकॉर्टिकल ट्रांसवेंट्रिकुलर बता रहे थे इस एरिया में, लेकिन आप एंडोस्कोपिक नहीं बता रहे थे। हालांकि आप स्टीरियोटैक्सी भी नहीं करते हैं, लेकिन एंडोस्कोपिक नहीं बता रहे थे, जो बड़ा सेफ प्रोसीजर है, जिसमें आप थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी भी करेंगे और बायोप्सी भी ले लेंगे। और एग्जामिनर बार बार आपसे यही पूछना चाह रहा था, लेकिन आप उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे थे।
तो आप जब बोलते हैं बहुत ज्यादा तो कम से कम ये भी देखेंगे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और कहाँ आप मिस कर रहे हैं. तो अगेन ओवरऑल you were good, but again concentrate over there के don't be speak too much so that you cannot understand what the examiner is wanted to ask you. I will Yes, sir. say thanks and assalamu alaikum to Professor Shams Raza Baroi. He is invited today as examiner. So, dear Dr. Shams, kindly proceed for the short case. Thank you. Sir, this is radiological case in which short case which virtual exam was conducted in these two previous sessions. So radiology का image है sir, उसके बाद sir उसी पे ही फिर पूरा discussion होगा sir. Okay. Sir, kindly proceed. Volunteer कोई भी, डॉक्टर साद, डॉक्टर अयास, कोई और जो एग्जाम के अटेम्प्ट करने जा रहा है तो काइंडली स्टार्ट कर दें. शम्स साहब की आवाज नहीं आ रही है. शम्स साहब, ब्रोई साहब की क्या आवाज नहीं आ रही है या नेट का कोई प्रॉब्लम है, क्या है? असद, अभी आ रही है? Now it's audible. Hello. Yes, you are. Everybody is listening to you. Am I Okay. audible? Yes, Okay. you are. Thank you very much. Professor Yadra, I'm very thankful to you. And who is going to answer this images? Who is going to reading this image? Sir, Dr. Saad, Dr. Athar and Dr. Ayaz, they are going to appear in exam upcoming. So anybody, आप में से ही कोई वापस से प्रेजेंट करे, ताकि आप लोगों का करने का मकसद ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें सर टीचर्स के साथ हमारे. तो वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और प्लस ये है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से रियल टाइम में, जैसे एग्जाम में जाने से पहले. Yes, anybody. Nobody is volunteer. सारे न्यूरो सर्जन है. They have run away. अयाज, आप स्टार्ट करें. Okay, sir. This is a MRI brain with a different T1 weighted images with different cuts, sagittal and the axial cuts, sir, showing a hypointense lesion, and most probably in the area of the third ventricle, which is roughly 6 into 4 centimeter in size, sir, and it causes dilatation of the other ventricles. What do you think? Like the temporal horn, sir. So this is causes hydrocephalus, sir. So what do you think? What is this BN? Sir, I need other images like T2 weighted images to see and to decide what is this. There are T2 weight images. These are the images. Yes, sir. This is also different cuts of MRI T2 weighted images, axial and coronal cuts, sir, showing a hyper intense lesion. So the consistency of the lesion is similar like a CSF, sir. So it most probably looking in erythroid cyst, sir. But for that, I also need diffusion weighted MRI. Are there images only? No, sir, we don't have. We have these images. So on this basis, this is, sir. So you are limited to this. What do you think? What is this? This is arachnoid cyst. Have you ever seen such patient? Arachnoid cyst, sir. No. Have you ever seen this patient? This type of patient? How they present? I have, sir. I have seen cyst of Sylvain Fisher, but not seen cyst of like this.
Hello. जी सर, जी सर, जी सर। Are they present? Sorry, I'm not listening to you. Hello. जी सर, जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब आपने पेशेंट ऐसा देखा कोई? Have you seen such patient? How they present? Sir, they present most probably with the sign Hello. symptoms. जी सर, जी सर। आवाज नहीं आ रही सर मेरी? जी सर। हाँ नहीं, सर मेरी आवाज you आ are रही? audible. यस सर। अच्छा डॉक्टर शम्स, यहाँ पे हम लोगों को आवाज आ रही है, Yeah, बताइए yeah. आपकी प्रॉब्लम आ रही है। असल इनको क्वेश्चन दिखाएंगे नीचे जी सर, जी सर, जो सेकंड स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं वो दिखाएंगे। जी सर। दूसरी स्लाइड में हाँ, so what is this? जी सर। आपको आवाज आ रही Galeazzi मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, ये क्या है? What is this classification? Galeazzi classification, sir, it is 3 types, sir. Type 1 में sir, the cyst is present in the tip of the temporal tip with the communication subarachnoid spaces through and the second, sir, the Galeazzi classification of the second type, it occupies the proximal and intermediate portion. Anyone sir, else can tell me clearly? and the third, sir, it occupies the whole area, sir, with no communication with subarachnoid spaces on water CT soluble contrast, sir. So what are the management options? Sir, there are many management options, sir. Endoscopic option, sir, and cyst excision, sir. Which type of options you will use? Sir, What type of options you will use? for this patient, sir. For this patient, I will use, sir, endoscopic option, sir. Endoscopy. What do you do on endoscopy? Sir, I will aspirate the cyst, sir, and will do the septum pellucidotomy to communicate, sir. Septum pellucidum. How will you do septum pellucidotomy on endoscopy? Sir, septum pellucidum में sir जो penetrate करते हैं. You will only aspirate the cyst, or you do something else to the cyst? सर एंडोस्कोपी में अगर हम जाए सर तो एस्पायरेट भी कर लेंगे सर, और अगर इसका वॉल How will you aspirate? How will you aspirate with endoscopy? Have you ever done aspiration of the third ventricular cyst? थर्ड ventriculostomy, sir, floor of the third ventricle में sir, The floor of, where will be the floor of the third ventricle? sir, floor of the third ventricle is in the middle of the mammillary body and in the No, and in in front. this cyst, in this arachnoid cyst, where will be the floor? Tuber sinarium में sir हम. No. Looking at this third ventricular arachnoid cyst, where will be the floor? It will be distorted, sir, I think. Now, how will you read the third ventricular floor in this patient? It will be difficult. So how will you do third ventricular cyst? Sir, Anybody else? Anybody cystoperitoneal else can tell how you cystopenetrant with endoscope? We are limited. No, sir. We are here at the endoscope. cystoperitoneal shunt हम करेंगे सर अगर वो नहीं. Have you heard about
ventricular cystostomy and this third ventriculostomy. Sir, I have never First of seen all, it. you will have opening in the third ventricle. You haven't seen any candidate who has seen this. You enter the lateral ventricle, then you enter into the cyst, and you open the cyst widely. Then you reach the third ventricular floor, and then you do cystocystostomy. You have opening of third cyst with the third ventricular floor. Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Hello, Ji, sir. Ji, sir. Dr. Javed, what do you say? Being the examiner, the resident. So because the arachnoid cyst is very difficult to treat, you can completely because it's also infiltrating the bile layer, at the floor and also the wall. But again, if the surgeon think he can try to separate it and remove the most of the cyst wall, he can do it from endoscopically. Otherwise, the another option may be the observation and also maybe later on can put the drain. What is the from Dr. Gohar? Dr. Ji, Gohar, are you ji, there? ji. Yeah, yes, Uh, I'm here. So how we can handle a case of the suprasellar, intraventricular, third ventricular cyst, particularly orconite cyst, endoscopically? Yes, so endoscopically, what usually is, first of all, if this is cyst is symptomatic, whether it's symptomatic or not. There are some cysts which are communicating and which are not symptomatic, but this cyst should be symptomatic, first of all. One is that one should investigate also the hormonal profile of this patient before surgery. And then one should make sure that this is an arachnoid cyst in other sequences. Because the nearest differential is in third ventricular craniopharyngioma or a third ventricular, I would say, um, retention cyst, maybe the other differential. So most common is, yes, third ventricular arachnoid cyst. So if it is a third ventricular arachnoid cyst, then the thing to do is to go endoscopically. And one should also take a biopsy of the wall endoscopically to make sure that this is an arachnoid cyst and fenestrate it. And at the same time, one should also do a septum pellucidotomy through the same approach. And this arachnoid cyst is biopsied. Let's see how much of it is stuck with the third ventricle. And one can easily take it out endoscopically as much as possible, the part which is not stuck with the third ventricle. Because the membrane is very thin, all that one has to do is to cut it through the endoscopic scissors and take it out. And करनी है या नहीं करनी है, endoscopic third ventriculostomy. That depends whether it's stuck to the aqueductal foramen or not, the opening of the aqueduct. If the cyst is stuck with the aqueduct, then the morbidity of taking out the cyst from there is much higher as compared to leaving it and doing an endoscopic third ventriculostomy to make the patient not independent. So this is the way out. Definitely. Actually, this is, the beauty of this is that it is clearly visible. It is transparent, and you can see all the vessels, the basilar arteries, branches. It's wholly visible. So it's, I think, when once you enter into the cyst, you can easily see the whole third ventricular floor, and it is very easy to do third ventriculostomy, as we have experienced many times.
This is, I think, is the best option if it is managed with the endoscope. Otherwise, So third other ventricular option may be cystoventricular. अच्छा थर्ड वेंटिकुलोस्टोमी इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं होती जबकि ये सिस्ट जो है इसने एक्विडक्ट के फोरामेन को छोड़ा हुआ हो, इसलिए कि जैसे ही आप सिस्ट को पंक्चर करेंगे ना सिस्ट कोलैप्स होगा, हाँ जैसे सिस्ट कोलैप्स होगा यू विल सी द वॉल्स ऑफ द हाँ थर्ड वेंटिकल, दे मे बी थिन, दे मे बी very inconspicuous, but the walls of the third ventricle are separate from the walls of the cyst, walls of this third ventricular cyst, because it's usually not stuck with the wall, it's usually separate. In most of the cases, the cyst is stuck with the roof of the third ventricle, and that is usually where it has to be left, because there are so many vessels in the velum interpositum, so it has to be left there. So it is the upper part may get the excised, but lower part on the third ventricular floor, it's adherent to the vessel. It will be difficult to excise if it that is part. adherent, then Another leave it alone. because we are getting again short of time. Ji, So, sir. Asad, can I have another picture, anatomy or instrument? Dr. Gohar, please. जी कौन है हमारे साथ, कैंडिडेट कौन है हमारे साथ? अच्छा हमारे साथ कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट्स में डॉक्टर साद है, डॉक्टर शाकिर है एंड डॉक्टर अयाज, डॉक्टर अत्थर. नहीं तो अभी हमारे पास इस केस में कौन सा कैंडिडेट आ रहा है हमारे साथ? सर डॉक्टर शाकिर कंटिन्यू करें या डॉक्टर अयाज या डॉक्टर साद, कोई भी आप बताइए, आप असाइन कर डॉक्टर दीजिए, साद आप स्टार्ट कर ले काइंडली. चलें डॉक्टर साद, आपके सामने ये एक इमेज है, दिस इज द इमेज दैट यू हैव गॉट, and the command is identify the structures and describe steps of surgery. Can you please identify the structures, Dr. Saad? Dr. Saad, are you there? डॉक्टर साद, शाकिरुल्लाह आप स्टार्ट कर ले काइंडली. शायद उनको शायद कोई प्रॉब्लम है. चलें शाकिरुल्लाह भी स्टार्ट करें. Shakirullah, are you with us? अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. शाकिरुल्लाह इसको ये पढ़ लीजिए कमांड्स और फिर वो डिस्क्राइब कीजिए इसको. Can you recognize what it is and what it is showing? सर मेरे पास नेट का मसला है सर, सॉरी सर. नेट का मसला है, चलें कोई और आ जाए फिर. अयाज आप काइंडली स्टार्ट कर दे. डॉक्टर अयाज, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, काइंडली स्टार्ट कर दे. सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीपीएन का लिए नहीं है. और साहब जी या तो आप इनसे ये मालूम कर लें या इनको ये बता देंगे ये कौन सी पिक्चर है और ये स्टेप्स ऑफ सर्जरी, या इस तरह से डिस्क्राइब कर दें. अच्छा चलें ठीक है. नहीं उन्होंने सीपी एंगल तक तो पहुंच गए ये. चलें जी, सीपी एंगल में आपको एक कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है सीपी एंगल का? ऐसा ये चीज जो है इसमें, ये व्हाइट चीज क्या है? सर ये लोअर क्रेनियल नर्व्स है, ये जो ए वाला. अच्छा लोअर क्रेनियल नर्व्स इतने मोटे होते हैं? नहीं सर, ये तो अगर ये हम एक एक इस तरह जो इसकी बने हुए हैं. इतना मोटा क्रेनियल नर्व कौन सा होता है सीपी एंगल? सर फिफ्थ नर्व होता है मोटा, और 7 और 8 क्रेनियल कॉम्प्लेक्स होता इतना मोटा तो नहीं होता ना, इतना मोटा तो नहीं होता 7th 8. चलो ये फिफ्थ नर्व है, फर्स्ट करो. अपर पार्ट ऑफ द सीपी एंगल है, फिफ्थ नर्व है. यस सर. अब ये क्या चीज शो कर रहा है? अब स्ट्रक्चर का आइडेंटिफाई.
सर तो ये फिफ्थ नर्व है और इसके साथ ये सी जो है ये सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगा सर। अच्छा, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ये, ठीक है, और ये फिफ्थ नर्व है। तो अब क्या, क्यों दिखा रहे हैं ये, किस वजह से ऑपरेट किया आपके ख्याल में? सर कंप्रेशन ऑफ द फिफ्थ नर्व बाय सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी सर। उससे क्या होगा? उसे सर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। प्रोसीजर कौन सा? प्रोसीजर सर वही है सर, ये सब रेट्रोमास्टाइड क्रेनिएक्टोमी सर, और नहीं, ये तो अप्रोच बता रहे हो, अप्रोच नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोसीजर पूछ। प्रोसीजर का नाम क्या है? प्रोसीजर का नाम है सर डिकम्प्रेशन सर, जो होता है कौन सा TJN, डिकम्प्रेशन? Microvax. माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर। माइक्रोवेस्कुलर। सर इसमें यह है कि पेशेंट को लेटरल पोजीशन में डालते हैं, क्लीनिंग ग्रैबिंग करते हैं सर, स्किन इंसिजन देते हैं सर। स्किन इंसिजन हम सर इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर एक्सटेंड करते हैं और 5 नीचे सर, और 1 mm इट इज 5 ऊपर, किससे, कौन से स्ट्रक्चर से 5 ऊपर 5 नीचे, कौन सा स्ट्रक्चर? सर 5 ये ऊपर है 5 किससे मस्टाइड 5 सर, ऊपर 5 नीचे करोगे? मस्टाइड नाच सर। मेस्टॉइड नॉच से? यस सर। मेस्टॉइड नॉच होती किधर है ये, इसको और क्या कहते हैं मेस्टॉइड नॉच को? सर इसको मेस्टॉइड नॉच से, मेस्टॉइड नॉच से अगर तुम 5 सेंटीमीटर नीचे जाओगे तो कोई वेसल मिलेगी तुम्हें? यस ऑक्सीपिटल बस सिर्फ ऑक्सीपिट मिलेगी और कोई वेसल नहीं मिलेगी? 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हो मेस्टॉइड नॉच से। सर तो ये नर्व सुपीरियर नर्व जो होता है सर। अच्छा चलो छोड़ो इसको, अब ठीक है, तुमने एक्सपोजर कर लिया, एक्सपोजर करने के बाद क्या करोगे? इसके एक्सपोजर से बाद मुराद ये है, सर सॉफ्ट मैं टिश्यू एक्सपोजर कर दिया, अब क्रेनियोटमी कैसे करोगे या क्रेनिएक्टमी कैसे करोगे, अब ये बताओ, लैंडमार्क्स क्या सर होंगे? मैं इसके लैंडमार्क्स ये है सर कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा ऑक्सीपिटोमास्टाइड, लेमडाइड और पेराइटोमास्टाइड सूचर को सर। उसको स्टीरियन कहते हैं। स्टीरियन एस्टीरियन आइडेंटिफाई कर लिया। एस्टीरियन क्या सिग्निफाई करता है, कहाँ पे होता है? सर ये एट द जंक्शन ऑफ द सिग्मॉइड एंड ट्रांसवर्स साइनस सर। जंक्शन ऑफ सिग्मॉइड एंड ट्रांसवर्स। क्यों उधर क्यों जाना जरूरी है? ताकि सर हमें ये उनकी उस पे ड्यूरा कोली बेस उसके तरफ हो सर, और उनकी बस इंजरी यही से। वजह है और कोई वजह नहीं है? तो एस्टीरियन पे जाना क्यों जरूरी है? मेस्टॉइड नॉच की बात कर रहे थे अभी तो तुम, मेस्टॉइड नॉच की तरफ क्यों नहीं जाते? अपनी उसको क्रेनिएक्टमी को वहां पे सर बेस क्यों नहीं करते, एस्टीरियन पे क्यों बेस कर सर रहे हो? हम सीपी एंगल पे जा रहे हैं सर, तो इसके 1 सीपीएंगल तो उधर से भी सेंटीमीटर आएगा, उधर से भी सीपीएंगल ही आएगा मेस्टॉइड नॉच की तरफ से अगर जाओगे। 1 चलो अच्छा आगे सेंटीमीटर, चलो, 1 आगे चलो। सेंटीमीटर। यस सर, 1 चलो वहां पे सेंटीमीटर बेस कर इन लिया, हाँ बेस कर लिया, 1 अब ड्यूरा। सेंटीमीटर। यस सर, ड्यूरा को सर ओपन करेंगे सर, कर्विलिनियर शेप पे सर, और इसके बाद सर हम सीएसएफ ड्रेन करेंगे। सीएसएफ कैसे के करेंगे ये सब, कैसे ड्रेन करेंगे? सर सीपी एंगल सिस्टर्न से इरिकिनेट को ओपन करने के बाद सर। सीपी एंगल सिस्टर्न से? तो सीपी एंगल एक ही सिस्टर्न है या इसमें कोई एक से ज्यादा सिस्टर्न्स होती हैं? सीपी एंगल एक ही है बस। चलो अच्छा आगे चलो, सीएसएफ ड्रेन हो गया, आगे चलो। इसके बाद सर मैं टेंटो पिक्टोरल कॉरिडोर को फॉलो करूंगा सर, और कौन यहाँ सा पे वाला, जो कौन सा वाला, दोबारा बोलो, कौन सा कॉरिडोर? टेंट और पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के दरमियान जो अच्छा, कॉरिडोर होता है। तो यानी जी सर। टेंट और ट्रिकस पार्ट के जंक्शन के आप साथ चले, तो पहला क्या स्ट्रक्चर मिला? पहला पेट्रोजल स्ट्रक्चर, वेन, पेट्रोजल वेन अगर आता है सर तो हम इसको कागुलेट और कट करेंगे सर। चले कट कर दिया, अब क्या मिला? अब इसके बाद सर हमें फिफ्थ नर 7-8 नर कम्प्लेक्स नजर आएगा सर, और इसकी 7th नीच की 8th नर्व कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। आप जो पेट्रोजल वेन को कट करने के बाद 7th 8th कॉम्प्लेक्स नजर आएगा आपको, इजंट इट? या इसके अलावा कुछ नजर आएगा, इसके बजाय कुछ और नजर आएगा? आप खुद ही तो कह रहे हैं कि आप टेंट के और उसके पीटरस के जंक्शन पे जा रहे हैं, उसको यस कहते हैं सर, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के साथ साथ जा रहे हैं, यस सर। फिर क्या मिलेगा? पेट्रोजल 7th वेन 8th को मिलेगा?
नहीं कर दिया ना बेटा, तो टोटल वेन को तो पहले कोगुलेट कर दिया ना, कट भी कर दिया, खुद ही तो कहा था आपने। आगे चलना आप। तो आप सर फिर 7th 8th मैं डाइसेक्शन को आपने प्रोसीड खुद कहा है करूंगा। कि बेटा आप पहले तो ये नहीं करो डाइसेक्शन, तो बाद में, पहले मिलेगा क्या स्ट्रक्चर ये तो बता दो। आप 7th 8th कह रहे हो, 7th 8th कहाँ जाता है? इंटरनल एडिटरी में सर। तो इंटरनल ऑर्टिमेटस कहाँ होता है? टेंट और पीटर्स की जंक्शन पे होता है। ऐसे पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे होता है सर। पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे होता है, तो कहाँ जंक्शन ऑफ द टेंट और पीटर्स पे होता है या कहीं और होता है इंटरनल ऑर्टिमेटस? जंक्शन पे तो नहीं होता सर, ये पेट्रस आप पार्ट तो पे जंक्शन होता पे जा रहे हो ना, आपने खुद ही कहा है जंक्शन पे जा रहे हो, अभी खुद ही तो कहा है पहले, मैं तो, मेरी बात तो नहीं है, तो आपने खुद ही कहा है। है। तो उसी जंक्शन पे होगा सर। तो बेटा जंक्शन पे 7th 8th कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं 7 फिर 8 क्या नर होगा? कॉम्प्लेक्स। करने क्या आए हो ये बताओ, क्या सर्जरी करने आए हो? मैं डिकम्प्रेशन कर रहा हूँ सर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी को पेप नर्व से तो बेटा डाइसेक्ट करने के लिए। तुम तो 7th 8th कॉम्प्लेक्स वहां पे ढूंढ रहे हो, 5th नहीं नर्व सर को 7 डिकम्प्रेस करने आए हो, 7th 8th कॉम्प्लेक्स ढूंढ रहे हो तुम वहां पे, फिर क्या करूँ मैं बताओ? तो सर डिकम्प्रेस तो ये 5th नर्व को करने आए हो ना। सर चूंकि ये पहले नजर आता है तो पेप नर्व इसके नीचे होता है सर। 5th नर्व इसके नीचे होता है। अच्छा यस चलो, सर। 7th 8th कॉम्प्लेक्स तो फिर क्या करोगे? रिट्रैक्ट करोगे, हटाओगे, क्या करोगे फिर? नहीं तुम सर खुद कर रहे हो ना कि रास्ते में आ रहा है, पहले ये होता है फिर उसके बाद 5th होता है, खुद ही तो कह रहे हो सर कि 7th 8th पहले होता है फिर बाद में 5th होता है। चलो अच्छा आगे चलो, अब 5th तक पहुंच गए, 5th को कैसे डिकम्प्रेशन करोगे, क्या करोगे? sir I will dissect the retinoid plane sir and then will displace the superior cerebral artery from the चलो कर दिया, pep डिस्प्लेस nerve। कर दिया, बस डिस्प्लेस करने के बाद क्या करोगे? डिस्ट्रक्ट भी इसके कर लिया, मैं डिस्प्लेस। ये श्रेडेड प्लान जो होता है सर ये वही रखूंगा या जो मसल पेच चलो होता है। शायद कॉम्प्लिकेशन बता दो इसको। नेक्स्ट पे चलें जरा असद साहब, अगले इस पे क्या सवाल हैं इसमें जरा देख लें। आपके पास टेफ्लॉन ना हो तो क्या करेंगे? ये टेफ्लॉन ना सर हो तो क्या मसल करें? सर इसमें सवाल नहीं है, सॉरी सर। पेशिया इसमें सवाल नहीं है तो आपको ही चलो टेलर करना था ठीक है। स्टेप्स ऑफ सर्जरी के साथ सर। अच्छा स्टेप्स ऑफ सर्जरी, चले कॉम्प्लिकेशन बता दें सर्जरी की जल्दी जल्दी। सर कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है सर कि हम पेशियल वीकनेस, पेशियल नमनेस सर एंड हेयरिंग लॉस सर और पोस्ट ऑफ हेमाटोमा से सेप लीक सर, और इसके अलावा यूजुअल क्रेनियोटोमी कॉम्प्लिकेशन, और इसके साथ जो वेसल्स है उनकी इंजरी कर सकते हैं। वेसल की इंजरी से क्या होगा? सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी की अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होगा? तो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई करते हैं उसका इन्फार्क्शन होगा सर। किस एरिया को सप्लाई करती है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ बेटा। ये तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होगा, आर्टरी की इंजरी हुई तो इन्फेक्शन होगा, तो किस एरिया को सप्लाई करती सर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी सर ये जो ऑक्सीपिटल के एरिया है सर। है? अराइज कहाँ से होती है? आरआई सर ये बेसिलर आर्टरी से। बेजल आर्टरी से। चलो, और फिर उसके बाद कैसे ट्रेवल करती है, किस उसके पार्ट के साथ ट्रेवल करती है? सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी का अगर इन्फाक्ट होगा तो क्या होगा, किस कौन सा पार्ट डैमेज होगा? अच्छा और कोई कॉम्प्लिकेशन बता दो, वेस्कुलर छोड़ दो। इसका सर हम हियरिंग लॉस हो सकता है सर हियरिंग लॉस ड्यू क्यों होगा, रीजन क्या होगी हियरिंग लॉस? ड्यू टू 7 8 नर्व कॉम्प्लेक्स रिट्रैक्शन या उनकी इंजरी से सर। और इसके अलावा अच्छा, पेशियल नमनेस, पेशियल वीकनेस सर, ये चीजें हो पेशेंट सकती है नमनेस, सर। पेशेंट वीकनेस, सबसे पेशेंट ने उठने के बाद कहा जी मेरा पेन सही नहीं हुआ है, अब क्या यस करें? सर। पेन सही नहीं हुआ है सर। सही नहीं हुआ, वो कह रहा है मेरा पेन सही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन भी हो गया, पेन सही नहीं। सर तो वी विल रीअश्योर द पेशेंट और कि वक्त के साथ ठीक हो जाता है सर, और अगर ऐसा ना हो तो रीएक्सप्लोर करेंगे या पेशेंट और कुछ करेंगे इसके अलावा? पेशेंट कह रहा है पेन सही नहीं हुआ मेरा, वैसे का वैसा ही पेन है। तो इसके आपके साथ में क्या फिर मसला हुआ होगा? आपने सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी हटाई थी, आपने खुद यस कहा सर। कि तो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी को हटाऊंगा और मैं जो शरीर टेफ्लॉन लगा के बंद कर दूंगा। यस सर। तो फिर सर मैं एसआरएस पे जाऊंगा कि हो सकता है फेलियर ऑफ द प्रोसीजर हो। तो और कोई कंप्रेशन हो सकता है सुपीरियर सेरेब्रल के अलावा?
और कंप्रेशन सर? और कोई Yes, आर्टरी sir. कंप्रेस कर सकती है? यस सर, वो कर सकते हैं, डूली को एक्टेटिक बेसिलर आर्टरी सर, और इसके अलावा पाई का भी कर सकते हैं सर, ये सर कर पाई का सकते भी हैं। कर सकता है, पाई का तो जरा दूर आना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए। करीब तरीन कौन सी है? वर्टिब्रल आर्टरी का जो कोर्स है सर, वर्टिब्रल आर्टरी को भी दूर आना पड़ेगा, वर्टिब्रल आर्टरी भी दूर पड़ेगी, इतने करीब नहीं है, उस करीब की आर्टरी ढूंढो ना। बेसिलर आर्टरी जो होती है चलो सर। हाँ, बेजिलर तक सही है, बेजिलर सही है। जी सर। अच्छा, और इसके अलावा वो कहता है कि जी वो आपके पास 1 हफ्ते के बाद आता है, उसका जो कॉर्निया है वो ओपेक हो रहा है, क्या करेंगे? यस सर, तो पिप्त नर है सर, इसकी वही हुई है, तो इसके लिए हम ये करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे सर, आर्टिफिशियल आई ओपेक हो रहा है ड्रॉप्स। कॉर्निया ओपेक हो रहा है। तो सर टर्सोरे पे और इन चीजों पे फिर हम जाएंगे सर। चलें, और इसके अलावा तो कोई केस नहीं है ऐसा सर? मैं कमेंट दूंगा डॉक्टर साहब को, नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन आप बहुत तेजी से हर चीज बोल देते हैं। अगर फेल्यूर है ट्राजियम या न्यूरोलजिया सर्जरी, तो उसको फौरन आप जो है ना एसआर से जो है भिजवा देंगे, तो एसआर जो है हिस्टियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, दैट इज आल्सो वेरी कॉस्टली। और मैं समझता हूँ हर एग्जामिनर इस चीज को पसंद ही नहीं करता कि कैंडिडेट इस तरह से बोले। तो थोड़ा सा आप जरूर जो है ना इस चीज को देखें कि जब एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि उसको एटिपिकल फेशियल पेन तो नहीं था जो सर्जन ने उसको उठा के जो है ना सर्जरी कर दी। सेकंड ये है कि डेफिनेटली जो गौर साहब ने जिस तरह से कहा कि दूसरी वेसल्स भी होती हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इस जो सामने जो वेसल नजर आ रही है, हो सकता है कभी कभी ये कल्प्रेट ना हो और उसके पीछे या नीचे जो है दूसरी वेसल्स हो। तो आपको जो है ना सारी वेसल्स को आइडेंटिफाई और नर्व को आइडेंटिफाई करना होता है, हर जगह से कहीं से भी कंप्रेशन ना हो। तो इस चीज का ख्याल करें, इससे बेहतर है कि फौरन जो है किस्म के ओके प्रोसीड। This is last station, so in this instrument is there. इसको मैं ही प्रोसीड करूं, इसको इस स्टेशन को मैं ही प्रोसीड करूं? सर आप या सर शम्स, जो भी मतलब काइंडली आप बता दीजिए, आप जिसको भी आप असाइन करते हैं वो प्रोसीड करेगा फिर। सर शम्स साहब को दे दें। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। शम्स साहब स्टार्ट करें। शम्स साहब आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, बस हम एंड करेंगे 2 PM पे, काइंडली इसको प्रोसीड करें। आई थिंक सर शम्स इज नॉट ऑन सीट। अच्छा उनकी ओके, आ रही है तो वीडियो, गौर लेकिन वो साहब सीट पे नहीं है जी। 5 मिनट्स जी। चलें, कौन आ रहा है हमारे साथ, जल्दी से आ जाए, 5 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं इसको। अयाज शाकिरुल्लाह सर साथ कोई भी स्टार्ट मैं कर लिया। करूंगा सर। आप कौन हैं? डॉक्टर अथर हैं? डॉक्टर शाकिरुल्लाह सर। शाकिरुल्लाह बताइए, ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ सवाल लिखे यस हैं। हो जाइए। yes sir, this is the Gardner Wells cervical protection and it is applied for गार्डनर the वेल्स, अच्छा। तो आपको इसके अलावा और कितने इंस्ट्रूमेंट ऐसे देखे हुए हैं आपने? ये है गार्डनर वेल्स किस काम के लिए इस्तेमाल होता no sir, sorry sir, hello sir। है? जी बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैफील्ड। मेफील्ड, अच्छा। और भी कोई इंस्ट्रूमेंट देखे हुए हैं आपने इस तरह के? पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सवाल करूंगा ना आपसे। अच्छा, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है ये बताएं। सर ये शाकिरुल्लाह किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? जी सर, जी गार्डर वेल। नहीं बेटा, गार्डनर वेल नहीं है ये। चलें, इसको अभी आप छोड़ दें, अंग्रेज का नाम छोड़ दें, आप बता दें ये है क्या चीज, बेसिक काम क्या है इसका, ये बता दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है शाकिरुल्लाह। शाकिरुल्लाह आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, कोई और आ जाए। कोई जूनियर रेजिडेंट भी आ जाए, इजी सवाल है।
डॉक्टर कंवल, कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। कौन आ रहा है, जल्दी से साइन कर ये दीजिए। रूटीन में वार्ड में किसी एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम लोग, तो जिस कॉमनली सोचे एग्जाम में मुश्किल चीजें नहीं आती, कॉमन चीजें होती हैं और आपको हिंट्स भी दे रहे होते हैं प्रोफेसर साहब। तो अभी सर ने जैसे कह दिया कि एक उसके जो जिसने बनाया उनका नाम ना ले, बाकी देख ले। तो जरूर आप लोगों ने अपने बोर्ड में प्रैक्टिस की होगी, जरूर की होगी। चलें, कौन आ रहा है? असद साइन करे किसी को। किसी को आप साइन कर दें असद, इसलिए कि टाइम शॉर्ट है, जैसे कि डॉक्टर अयाज ने बताया अभी। किसी की आवाज डॉक्टर साद या डॉक्टर अयाज काइंडली स्टार्ट कर दें। मुझे लगता है सबके जो है ना Sir, it may be used, I don't know about the name, but it may be used for traction, sir. अच्छा, Good. ट्रैक्शन। चलें ट्रैक्शन। तो अब अप्लाई कैसे करेंगे आप, इसको बताएं। सर अप्लाई मैं सुपीरियर टेम्पोरल रिच पे करूंगा, लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन पे, लेकिन इसका फिर डिपेंड करता है कि ये मैं इंजरी किस तरह है, कि मैं एक्सटेंशन में डालूं या जो एक्सटेंशन इंजरी है इसके उसके लिए स्टेप मैं। बता दें, एप्लीकेशन के स्टेप बता दें, छोड़ें एक्सटेंशन फ्रैक्शन को भी छोड़ें, स्टेप्स बता दें एप्लीकेशन के फटाफट। ओके सर, इसमें सबसे पहले मैं पेशेंट को डालूंगा सुपाइन पोजीशन पे, इसका जो स्पेसिफिक बेड है उस पे। इसके बाद मैं सर इसको क्लीनिंग ड्रेपिंग करूंगा। इसके बाद सर मैं लोकल एनेस्थीसिया दूंगा। लोकल एनेस्थीसिया के बाद सर मैं स्किन कट लगाऊंगा उसके नाइफ के थ्रू से सर। इसके बाद सर मैं इसको इसका जो पेन है सर उसके न्यूट्रल पोजीशन के लिए टेम्पोरल रिच पे सर डालूंगा 1 mm। अच्छा बेटा, ये जो क्रचफील्ड होता है ना, इसके साथ पहले ड्रिल भी करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। गार्डनर वेल खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है, क्रचफील्ड खुद अप्लाई नहीं होता, उसके साथ पहले ड्रिल करना पड़ता है, सुराख बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके पिन अमूमन जाते नहीं अंदर। चलें, यस सर। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अप्लाइंग इट? इंडिकेशंस क्या? सर इसके इंडिकेशन ये है कि एक तो हम ये स्पाइनल अलाइनमेंट के लिए डालते हैं, और इसके अलावा अगर कोई डिजीजेस बता दें इंडिकेशंस क्या हो रहे हैं। स्पाइनल अलाइनमेंट है सर, और इसके अलावा सर स्पाइनल जो अलाइनमेंट ऑफ यूज बता रहे हैं आप। जाहिर सी बात है, मेल अलाइन होगा तो आप अलाइन करेंगे। उसमें डिजीजेस कौन कौन सी हैं जो स्पाइनल मेल अलाइनमेंट प्रोड्यूस करती हैं? जब सर ट्रामा हुआ हो, और आगे लिस्थीसिस सर, लिस्थीसिस सर। इसके अलावा सर की लाक वजह क्या फेसिट होती है? है सर, लाक फेसिट वजह है क्या सर। होती है? ट्रॉमा तो बता दिया ना बेटा आपने, ट्रॉमा जी के सर। अलावा बताएं। ट्रामा के अलावा सर चलें, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दें। इसका कंट्रा इंडिकेशन सर ये है कि एक्सट्रीम ऑफ एज हो सर, जब ज्यादा क्यों एक्सट्रीम छोटा ऑफ या एज? बड़ा क्यों? हो सर। वाई एक्सट्रीम ऑफ एज? सर और बताएं कॉन्ट्रा टाइप 2, टाइप 2 ए, टाइप 2 ए और हैंगमैन फ्रैक्चर, टाइप 3 हैंगमैन फ्रैक्चर है सर। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस है सर। ठीक है, और इसके चलें अब ये बताएं कि अलावा फोर्थ, अब जब गार्डनर वेल्स अगर आप ले लें तो गार्डनर वेल्स में एक टर्न के साथ कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई होती 1 mm पे सर। है? एक नहीं, एक टर्न जब आप देते हैं उसके, यानी टाइटनिंग पिन को, तो उसके साथ कितनी फोर्स अप्लाई होती है? और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आपको याद है ऐसे? नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। बाकी सर तो याद नहीं है अभी। याद नहीं? ये ट्रैक्शन टोंग तो कई किस्म के होते हैं, ट्रैक्शन टोंग है बेसिकली, क्रशफील्ड ट्रैक्शन टोंग, ठीक है। चलें, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है असद? No sir, these were the final, this is the final slide. So thank you so much, Dr. Gauhar and Dr. Rohit. Good exercise. Thank you. Any comments at the end? आई थिंक ये लोग जो है ना वो जब जवाब देते हैं तो बिल्कुल नीजर रिएक्शन की तरह जवाब देते हैं, सोचते नहीं है ये लोग जरा सा भी। ये अब अपने केस से भी हट जाए थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नीजर रिएक्शन जो होता है आपको फंसाता है, इसलिए कि आप एक दफा कोई चीज बोल देते हैं ना, देन यू आर कमिटेड। आप उससे फिर जब
पीछे विड्रॉ करते हैं तो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ यू इन द एग्जाम। तो इसलिए सोच समझ के बोलें, और एक दफा जब बोलें तो यानी आगे तक का सोच के बोलें कि आगे आपको उसको जस्टिफाई कैसे करना है। इसलिए कि आपको ये तो पता है ना कि अब जैसे लॉन्ग केस में इसके बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद वो भी आएगी, इमेजिंग भी आएगी, इमेजिंग के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी फर्दर आएंगी, इसके अलावा जो है मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन आएंगे। ये तो आपको पता है, तो जब पता है तो ऐसा बोलेंगे जो कि आगे तक आप उसको जस्टिफाई कर सकें। बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट केसेस में आप पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बताया कि एक मोटा नर्व दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक आर्टरी दिखाई दे रही है। 9, 10, 11 जो है ना, ऐसा मोटा नर्व तो नहीं होता ना, 9, 10, 11 बड़े पतले पतले नर्व होते हैं। इसी तरह 7, 8 कॉम्प्लेक्स भी बड़ा पतला सा होता है। तो इतना मोटा नर्व सीपी एंगल में एक ही होता है। सीपी एंगल तक आप पहुंच गए तो सोचे कि मोटा नर्व कौन सा है, और मोटा नर्व कौन सा है, तो उसके साथ एक वेसल चिपकी हुई है। ऐसा अमूमन होता नहीं है ना कि नर्व के साथ इतनी मोटी सारी एक वेसल चिपकी हुई हो। तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना चाहिए मोटा नर्व है, एक वेसल है, तो मोस्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होगा। अब ये तो बहुत ही ईजी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको तो मेरा ख्याल से काफी यूज करते हैं, डे इन और डे आउट की प्रैक्टिस है ये तो। ट्रैक्शन टोंग, आप नहीं तो आप ट्रैक्शन टोंग कहते हैं, अगर आप क्रश फील्ड मे फील्ड पे आप वो होते हैं या गार्डनर वेल्स पे वो होते हैं तो आप ट्रैक्शन टोंग कह दीजिए, सिंपल, के सर्वाइकल ट्रैक्शन टोंग है। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ ही है, बाकी तो क्वेश्चन साथ ही है बिल्कुल। तो आई थिंक थोड़ा सा थैंक यू सो कॉमन मच डॉक्टर पवार। जी जी, Thank you so थैंक much, यू sir. सो मच। Thank you so much, sir, and Professor Shamsab for your very valuable time for us. Thank you so much, sir. Jazakallah. Thank you, all of Thank you. you. Jazakallah, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Jazak.